ہاں السلام علیکم. ہلو. ہلو. آواز آ السلام رہی ہے؟ علیکم. وعلیکم السلام. ہاں نثار بھائی خیریت ہے؟ الحمدللہ، بتاؤ جائے. کیا حال چال ہے باقی؟ ٹھیک ہے. اس لیے فون کیا تھا بھائی، وہ آپ کا نمبر ملا تھا واٹس ایپ پہ. آپ کچھ تقویت الایمان کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے تھے کسی سے، تو آپ کو کیا سمجھنا ہے ذرا بتائیں گے؟ تو تو ابھی میں تھوڑا بات میں آپ کو کال کروں. ابھی میں تھوڑا بات کر رہا ہوں. اچھا، کتنی دیر بات کریں گے؟ اب لگ بھگ میں مغرب سے بات کروں گا یا عشاء کے بات کروں اچھا چلیے، کوئی بات نہیں، کریے. ٹھیک. گا. ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناصر بھائی، ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ابھی تو آواز آ رہی ہے. ہاں، تھوڑا سا اندر تھا میں. تو آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ مسلک تو میرا ابھی میں اہل سنت والجماعت اور جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جنہیں میرے بھی لوگ کہتے ہیں مسلک جو ہے. اچھا اچھا. تو ہاں. آپ مطلب آپ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی ہے نا کہ کیوں ایسا ہے، کیا مطلب وہ چیز ہے؟ دو لوگوں کی گفتگو میں جیسے جو بندی اور وہ آگے آج کل جو آڈیو کا یہ جو ماحول چل گیا ہے نا، مطلب ہاں. یہ بہت خطرناک ہے. اچھا. تو ہم نے اس میں سنا تھا تو اس میں وہ حوالہ دے رہے تھے. کوئی تقویت نام کی کتاب ہے، تقویت الایمان ہے، کون سی کتاب ہے؟ تقویت الایمان یا تقویت الایمان ایسا کوئی تک کتاب ہے اس کا. تک اچھا ہاں، تقویت ایمان کیا ہے اس میں؟ اب تقویت الایمان ہے. کیا نام ہے اس کا؟ تقویت ہاں الایمان. ہاں، تقویت ہاں. ایمان. ہاں تو اس میں کچھ بتا رہے تھے کہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ مطلب یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے سامنے شمار کی بھی دلیل ہے. تو ایسا کچھ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. مطلب شروع سے بتائیے. اس کو ہر میں ہر دیکھ رہا مخلوق ہوں. ہر موبائل میں ہی مخلوق. اسی بات پر ہم، بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی ہاں ہاں. کہ ایسا لکھنا کیسا ہے، کیا ایسا لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے. تو انہوں نے ہم، پوچھا کون سی کتاب میں لکھا ہے. انہوں نے بتایا کہ تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر کچھ 20 ایسا کچھ بتایا تھا انہوں نے، مجھے نہیں ہے. ہم، تو انہوں نے بتایا کہ جان لینا چاہیے ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہم. اللہ کے سامنے زمین جماعت سے بھی دلیل ہے. جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے، ہاں. اب جماعت سے بھی زیادہ ہے یا زیادہ کا لفظ نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں. ہم، تو لیکن ایسا ہے جماعت سے بھی دلیل، یہ تو پکا ہے. اور جماعت سے ہم، زیادہ ہے یا جماعت سے بھی ہے یہ کنفرم نہیں. اب آپ دو ہم، میں سے کوئی بھی سمجھ لیجیے، سے سمجھ لیجیے، وہ بھی ایک ہی بات ہے. دونوں بات الفاظ دونوں ایک ہی میں آتا ہے. جماعت ہم، سے بھی کہیں گے تو زیادہ بھی کہیں گے تب بھی، اور سے کہیں گے تب بھی. بات تو ہم، دونوں لگ بھگ ایک ہی ہے. لیکن ہم، اب آپ دونوں میں سے کوئی بھی سمجھ لیجیے. ہم، کیونکہ اب میں اتنا کنفرم تو میں نہیں بول سکتا ہوں. ہم. تو لیکن اس میں جماعت سے بھی جلیل یا جماعت سے زیادہ جلیل، یہ دونوں میں سے ہاں ایک ہے. ہاں، تو اس میں اعتراض کیا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آیا. آپ اعتراض اس میں آپ کو اشکال کیا ہو رہا ہے اعتراض کہ؟ اس بات کا ہے. جی جی میں بتا رہا ہوں. اس جی. میں بات میرے کو بھی یہ بات تھوڑا ناگوار ہوئی کہ ہاں تو ایک عام انسان میں میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں غلطی ہے، ایسا ہم، نہیں لکھنا چاہیے. ہم. نہیں اب کیوں، اس میرے میں کو جو انہوں نے مطلب جو کیا چیز بتایا ہے؟ میں یہ میں نہیں بتا رہا پوچھ ہوں. رہا ہوں آپ سے، آپ غلط سمجھے لیکن کیوں سمجھے غلط وہ؟ اس میں ہاں غلط کیا غلط لگا وہ میں پوچھ یہ. رہا ہوں. اب مخلوق میں چھوٹی اور بڑی ساری مخلوق میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ساری مخلوق آ جاتی ہے. نبی ہو، ولی ہو، فرشتے ہو. فرشتے بھی مخلوق میں ہے نا. ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ ایک دم صحیح ہے. اب وہ اس میں کیونکہ چھوٹی اور بڑی دونوں چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اگر خالی چھوٹی کی بات ہوتی تو وہ الگ ہاں بات ہے. لیکن ہاں چھوٹی ہو یا بڑی، اب اس میں ہاں. فرشتے ہو، نبی ہو، ہم، ولی ہم، ہو، اللہ کے بعد ہر مخلوق اس میں شامل ہو. ہم. اب ہر مخلوق کو جماعت سے جلیل لکھنا یہ ہاں، کہاں تک درست؟ اس میں مطلق ہے نا، کسی کا نام نہیں لیا گیا اس میں. نہیں نام تو نہیں لیا، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن ہم. مخلوق کا مطلقاً کہنا تو مطلق میں سب لوگ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے.
अच्छा अगर अच्छा ठीक है, आपका एतराज मैं समझ गया। ये कहने मतलब है कि मेरी उन्होंने कहा मेरी कि बात हर है जो मक, क्योंकि मुझे अब मुझे बोल, आप सुनिए नहीं। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया सारी मखलूक अल्लाह के सामने जलील है, अल्लाह के आगे जलील है, यही है ना? इस पर जमात से एतराज भी है। जलील है या जमात से जमात ज्यादा से भी जलील है। जमात से भी ज्यादा जलील है, तो जलील पे आपको एतराज है ना कि भाई जलील क्यों कहा? जी ठीक जी है। जी, यही हाँ, समझ में नहीं आ रहा। वो असल में अल्लाह की जो अजमत के सामने वो बयान किया जाता है, मुतलकन किसी का नाम लेके बयान नहीं किया जाता, मुतलकन किया जाता है। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल, अल्लाह हाँ, के वली है। उन्होंने जन्नती अल्लाह है। के वली हैं और बड़े बड़े वली हैं वो भी। जन्नती है। उन्होंने अल फतहुर रब्बानी उनकी किताब है, किसी से पूछ लेना। अल फतहुर रब्बानी सफा नंबर 416 पर उन्होंने लिखा है, कुल्लू मा सिवल्लाहि अज्जा व जल्ला सनमुन। कहते हैं कि हर चीज अल्लाह के सिवा बुत है। तो क्या तुम इसी पे उनको कहोगे कि भाई उन्होंने नौजुबिल्ला अंबिया कराम को, औलिया कराम को बुत कह दिया, अल्लाह के रसूल को बुत कह दिया? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। उन्होंने कह दिया अल्लाह के सिवा। दूसरा चीज, आपके जो बरेलवी मसलक के बड़े आलिम है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, सुने नाम आपने? हाँ, सुने नाम हैं? तो सुने हैं, ना वो सुने हैं ना। शान हबीबुर रहमान, सफा नंबर 205। ठीक है। और ये छपी है मकतबा इस्लामिया लाहौर, वहां से ये किताब छपी है। उसके सफा नंबर 205 पर आप देखेंगे उन्होंने लिखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खता ना की, बल्कि इस खता का सबब वो खबीस इंसान हुए जो पुश्ते हजरत आदम में थे। मंजूर इलाही ना था कि ये खबीस लोग जन्नत में पैदा हों। फरमाया, ऐ आदम, जमीन पर जाकर उनको फेंक आओ, फिर जन्नत में तशरीफ लाओ। तो यहाँ पुश्ते आदम में, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त में तो अंबिया कराम भी थे, औलिया कराम भी थे ना। तो हम्म। उन्होंने खबीस कहा है कि जो पुश्ते आदम में थे उन वो खबीस लोग को जमीन पर जाके छोड़ाओ। तो ये तो ऐसा, तो अगर इस पर मुतलक लेंगे तो पुश्ते आदम में तो अंबिया कराम भी थे, औलिया कराम भी थे, तो ये भी गुस्ताखी हो गई। हाँ, ठीक है। लेकिन वो अगर उसमें उसमें मुतलकन नहीं कहा गया है ना, उसमें खबीस इंसान की बात हो रही है। उसमें जैसे अगर खबीस इंसान कहा गया है कि जो खबीस इंसान पुष्ट में है, तो हम्म। खबीस इंसान जो होंगे उस पर बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ हर मखलूक की बात हो रही है, छोटी हो बड़ी, मतलब हर तरफ से ये कर दिया गया है। अरे और यहाँ इसमें ये, ऐसा हाँ कोई सुनो सुनो, इसमें लिखा है जो पुश्ते आदम में थे, यानी जो पुश्ते आदम में थे। जो का मन जो है वो आपके आलिम ने, इन्हीं ने कहा है कि जो मन जो का लफ्ज आए तो वो मुतलक होता है, यानी सबको शामिल होता है। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी दूसरी किताब में कहा है, उसका भी बोलो पढ़ के लगा दूं। तो इसमें लिखा है जो पुश्ते आदम में थे, तो जो में तो सब आ गए ना भाई, तो इसमें तो मुतलक हो गया। दूस, और और दूसरा मैं आपके ही किताबों का हवाला और दे देता हूँ। ठीक है। तो मतलब अब वो किताबों का आप हवाला देंगे भी तो हमारे इतना इल्म नहीं है, अब उतना मैं कहाँ जाऊंगा देखने या कहाँ जाऊंगा समझने, और समझने की इतनी सलाहियत होती तो मैं यहाँ होटल में हाँ, नौकरी नहीं कर रहा होता, क्योंकि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इम्तिहान एक कर रहा एक हूँ। हवाला, एक हवाला मैं एक और दे देता हूँ। अल वो सरहुल उसका देखिए अल्लामा अल्लामा भाई, कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, भाई मैं सरहुल। ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना हाँ, चाह रहा हूँ उसमें जैसे आप कितने भी हवाला दे दें तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा जब हमें पता नहीं है, हम उतना इल्म नहीं रखते। हम जैसे ये समझना चाहते हैं कि क्या मतलब ऐसा लिख देना मतलब ठीक है या मैं नहीं है, वही बस मेरी मैं ये वही मैं वही समझना आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैं कुछ किताबें आपको हवाले दे दूँ, एक तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को मैंने दे दिया है। दूसरा मैं गुलशन तौहीद मोहम्मद अशरफ सैयालवी, ये बरेलवी के बहुत बड़े आलिम हैं, इन्होंने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखा है। ठीक है। गुलशन तौहीद और रिसालत जिल्द नंबर अव्वल, सफर नंबर 280 में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब तक लोगों को मैदनी पैखाना की तरह हकीर न समझे वो ईमान वाला नहीं। अब सोचो, लोगों में तो सब आ गए अंबिया कराम। ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकून अल खल्क इंदहु कल अबाइर, कि लोगों, कोई शख्स जब तक लोगों को मेगनी यानी पैखाने की तरह हकीर न समझे तो वो ईमान वाला नहीं। तो अब इसमें तो सब आंगे अंबिया कराम, औलिया कराम, तो आप अल्लाह के रसूल पर भी बोलोगे कि उन्होंने नौजुबिल्ला
या गलत बयानी की या को तौहीन किया। तो ये मुतलक जब बोला जाए कोई चीज ना, किसी का बगैर नाम लिए, तो वो तौहीन नहीं होता। तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि छोटा बड़ा में बड़े में अंबिया कराम आ गए, छोटे में औलिया कराम आ गए, ये तो हाँ हाँ, आप तो अपनी। वो तो बात। हाँ। जी तो जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो मुतलक है। अभी हम कह दें कि भाई अल्लाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में भी है, आपके उसमें भी है, किताबों में भी है। अल्लाह के सामने, उसके इल्म के सामने, उसमें लिखा है मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी कि अल्लाह के इल्म के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है एक जर्रे से भी कोई हैसियत नहीं रखता। तो क्या अल्लाह के रसूल जर्रे से भी ज्यादा वो नाचीज हो गए? तो ये मुतलक बोला जाता है। जब मुतलक बोला जाए तो, और अल्लाह के सामने तो सारी चीज मतलब कोई हैसियत ही नहीं रखती, सबको मालूम है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी अंबिया कराम या औलिया कराम की तौहीन हो। ये अल्लाह की अजमत बताई जाती है, सामने अल्लाह की अजमत बताई जाती है, किसी का मुआजना नहीं किया जाता, और किसी का मुआजना हो ही नहीं सकता अल्लाह के सामने। इसीलिए तो अल्लामा जरकानी ने भी वही बात लिखी है। अल्लामा जरकानी ने क्या लिखा, मैं आप किसी आलिम से ये ऑडियो सुना के पूछ लेना। शरे जरकानी अल मवाहिबुल लदुनिया, इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है तसव्वुफ उस नाम है कि कल्ब को सिर्फ अल्लाह के लिए खाली कर दे, और उसके अजमत व जलाल के मुकाबले पे तमाम चीजों को हकीर जाने। और ये हकीर समझना खुदा के जलालत और जबरूत के लिहाज से है, ना कि नबी और जैसे दूसरे मुकर्रबीन को, उसके लिहाज से नहीं है, बल्कि अल्लाह की अजमत बताई जाती है। ये शरह जरकानी में उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के सिवा। अब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की भी मैंने बता दिया। इसी तरह से बहुत सारे मैं हवाले दे सकता हूँ इसमें। तो ये तो आम तौर पर बयान किया जाता है, अल्लाह की अजमत बयान की जाती है, किसी मखलूक की उसमें कोई मुआजना नहीं होता। मुतलक जब कोई बयान किया जाए तो इस तरह किसी मखलूक की तौहीन नहीं होती। नाम जब लिए जाएंगे तब समझ सकते हैं कि भाई यहाँ उस वो मखलूक की कोई बात हो रही है। लेकिन अगर अच्छा। जैसे, हाँ बात सही है, चलो ठीक है, थोड़ी बात के लिए, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात समझे, लेकिन जो चमार का जो लफ्ज चमार है, इससे ये नहीं होता है। चमार से भी, चलो आप मान लिया, आप बोल रहे हैं कि ठीक है अल्लाह के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, मतलब अगर ऐसा बोला जाए तो ठीक है उसमें। और अगर इस तरह से बोला जाएगा, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। आप हाँ, आपका दूसरा जो तो जैसे एतराज है बताइए। आपने जो हाँ कहा कि हाँ ठीक है, अल्लाह के सामने तो अगर मुतलकन देखा जाए तो किसी की कोई हैसियत नहीं है, वो बात अलग है। हाँ। उसके सामने ना उसके कोई मुकाबिल हो सकता है, ना हम्म। उसके कोई टकराव का हो सकता है, ना किसी भी लिहाज से उसके, क्या बोलेंगे, एक करोड़वा हिस्सा भी कोई अरे तो वहां पे एक सामने हदीस किसी भी का नकल है ना मुकाबिल कि, नहीं। देखो, अल्लाह वहां पे हदीस नकल है ना कि जो पैखाना समझे लोगों को, सारे लोगों को, तब वो ईमान वाला होगा। तो पैखाना बहरहाल चमार तो पैखाने से अफजल ही है ना, हैं? सारी मखलूक को वो अब्दी देखो, फवायदुल फवाद जो है मौलाना निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसमें फरमाया किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सारी मखलूक को ऊंट के पैखाने जैसा ना समझे, उससे भी नीचे ना समझे। अब ये ऊंट का पैखाना क्या है, चमार से बड़ा ज्यादा है कि कम है? बताओ। रिवायत के बारे में तो हमें पता नहीं है, ना तो इसके बारे में वो है, लेकिन अरे ऐसा ही मतलब ये है कि मैं हवाला भी देता हूँ ना, मैं ऐसा तो नहीं कि हवाला नहीं दे रहा हूँ। इतना वो नहीं पता है मुझे, तो अच्छी चीज का वो देखो, नहीं नहीं है, तो वाली मैं बात है। हवाले का नाम लेता हूँ, फवायदुल फुआद, और ये अकबर बुक सेल्स से छपी है, इसके सफा नंबर 251, 8वें मजलिस। ये किसी को भी दिखाएंगे वो हवाला ढूंढ लेगा। अगर आप बोले तो मैं हवाला भेज दूं आपको। अरे नहीं नहीं, फवायदुल फुआद। जरूरत नहीं हाँ, उसको, तो वो तो कह रहे हैं जरूरत ना, नहीं है तो और उसका। वो तो कह रहे हैं कि जानवर के पैखाने से भी वो जैसा ना समझे जब तक वो ईमान उसका मुकम्मल नहीं है, ईमान वाला नहीं है। अब सोचो, अब वो किस पूरी लिहाज से कह दुनिया रहे हैं, का। क्या कह रहे हैं, अब वो तो भाई इल्म वाले ही बता सकते हैं। ये भी इसीलिए हमने पूछा है कि हाँ नहीं, मैं इस पर कोई अरे ये नहीं भाई, कर, लेकिन जैसे हाँ। आप तकवीयतुल ईमान पर किसी का सुनकर एतराज कर लिए, जी जी जी। तो ऐसे तो ये भी मैं बता रहा हूँ ना, ये भी तो आप सुन ही रहे हो ना भाई। तो आप अपने आलिम से पूछो भाई ऐसा अब ऐसा है इसको, तो क्यों है। अब अगर इसको ये, पहले पहले इसको हाँ, मैं पूछूंगा कि यही भारत मौजूद है, बिल्कुल और बिल्कुल हमारे यही पास बात है। लिहाज से है। सुनो, हाँ मतलब नहीं, वही बोल रहा एक हूँ, देखिए इसको मैंने आपसे एक, कंफर्म किया कि एक यही बात है, इस लिहाज निसार से। भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं तरीका बताता हूँ। आप ये हवाले, ये ऑडियो भेजिए आप,
कि ये बंदे ने हवाला दिया है, ऐसा ऐसा है। अगर वो इनकार करता है तो उसको लाइन पर लेकर मुझसे बात करा दो, बड़ा आलिम कोई है। इससे अच्छा क्या बात होगी, आप भी लाइन पे सुनो, उसको भी बात करा दो। अगर हवाले गलत होगा तो मुझे मेरी पकड़ करेगा ना, मुझसे मांगेगा भाई हवाला भेजो, तो मैं हवाला भेजूंगा। अगर नहीं भेजा तो मेरी गलती है, और अगर ये बात नहीं हुई तो मैं भी झूठा, यही बात होगी ना। तो आप मेरी उससे बात करा देना अगर हवाले का इनकार करता है तो, मैंने जो जो यहाँ तो हवाले हम दिए हैं। यहाँ तो हमारे मसलक का कोई है नहीं। जब गांव पर जाएंगे या कुछ होगा तो आप आपको पड़ेगा। किसी का नंबर तो होगा ना, गांव में किसी से मांग लो बड़े आलिम का, जो बड़े आलिम है। हाँ, मैं इतना तो इंडिया बड़ा हिंदुस्तान में, बस यही। हिंदुस्तान में होंगे ना बड़े बड़े आलिम। वो तो मैं इतना वही तो मैं ये फील्ड में जब रहूंगा तब तो किसी का नंबर रहेगा। मैं इतना ना तो ये गया हूँ ना कहीं वो हुआ। बस वही ऑडियो सुना था, बस ऐसे ही मैंने लगा दिया। अभी अभी देखो, आप फाजिले बरेली को अपना बड़ा आलिम मानते हो ना, आपने कहा है कि वो बड़े आलिम है, आलिम दीन है। उनके हदायत बख्शिश में उन्होंने कहा है, अल्लाह के रसूल को जलील कह दिया है। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल को जलील कहा है, तब क्या बोलोगे, तो तौहीन कहाँ मानोगे। दलील कहा है? मतलब इसमें दलील कहाँ दलील कहा है? मतलब क्या हदाय आप के बोलिए। हदाय बख्शिश हिस्सा दोम सफर नंबर नहीं, वो शेर आपने जो कहा वो शेर कहिए जरा। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद ये जिल्लत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कसरते बाद किल्लत, तो ये हुजूर हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। हाँ वजूद सल्लम के बारे में है। तो कसरत कसरत अगर बोलेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे सामने, मतलब उसको मुकद्दम कर समझे, दिया जाएगा। ये कसरत का मतलब क्या है? अच्छा, शेर का मतलब क्या समझे आप, क्या समझे आप। कसरत कसरत का मतलब क्या होता है? पहले कसरते बाद किल्लत, यानी पहले कम थे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कम थे, वो कसरत बाद और जब बाद में बोलते हैं सुनो, किल्लत किसको बोलते हैं? सुनिए। वही तो मैं आपसे पूछ किल्लत, रहा हूँ। किल्लत कहते हैं कम को, कसरत कम कहते को, हैं ज्यादा और को। कसरत कहते हैं ज्यादा को। ज्यादा को, हाँ पहले ज्यादा कम को। थे फिर ज्यादा हुए, तो ये हाँ सहाबे हाँ कराम हाँ को मुखातिब किया गया है। हाँ हाँ, कम और बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। नबी नहीं हाँ होते, एक नबी से जो बात 10-20 हो गए नहीं। हाँ 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 सहाबा हाँ। पहले कम थे फिर इसके बाद ज्यादा हो अच्छा, गए, फिर इसमें नबी कहाँ से आ गए? इसकी अच्छा बात तो इसमें बाइबल में हो रही है। कस मैं बता रहा हूँ, आप वो जो कह रहे हो ना कि इसमें नबी कहाँ से आ गए। कसरते हाँ बादे कसरते बादे इज्जत पे लाखों सलाम। ठीक है, मैं शेर पहले आपको कसरत पढ़ बाद के फिर से, किल्लत के अक्सर एक तो। एक मिनट, एक मिनट, आपको जी शेर जी, पढ़ के वही शेर अच्छे मैं बता सुनाता रहा हूँ। हूँ। मैं आपका इतराज जो समझ गया मैं उसको बता रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं इसमें जो लिखा है कसरते बादे किल्लत पे अक्सर दरूद, हम्म। कसरते बादे, तो अक्सर दरूद किस पे दरूद पढ़ रहे हो, और अक्सर इज्जत दुरूद जो बाद जिल्लत अक्सरियत पे नहीं। लाखों सलाम, है ना, किसको पढ़ रहे अल्लाह हैं। ने जो किल्लत के बाद जो कम सहाबा थे, थोड़े से सहाबा थे हाँ जो तो, इससे बरकत करके इतने सारे अच्छा, सहाबा हुए, उन सारे हाँ, सहाबा पर अक्सर दुरूद। वो अक्सर यानी उस पे साहब कराम पर दरूद भेज रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। जी बिल्कुल। और इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। हाँ, अब तो वही मैं बता रहा जिल्लत हूँ के ना। बाद, एक मिनट, जिल्लत के बाद इज्जत मिली, तो जिल्लत जलील कौन था। मैं बता रहा हूँ ना। साहब कराम जलील थे, वो आप मानते हो। अरे बात सुनिए, जलील सहाबा कराम नहीं थे। हाँ वो हाँ हाँ। जलालत में थे, अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता फरमाई, वो इज्जत जलालत दी। में थे, जलालत जब जीम से आता है, जाल से नहीं आता, जाल से होता है जलील, अरे नीचा, जलील। कमतर अरे आदमी। हाँ हाँ, ठीक आपको है ठीक है, तो वो तो बात बिल्कुल सही है अरे ना। यार मेरे अरे भाई, जलालत जो जाल, आता है जीम से हमारी आता है, बात जाल से सुनिएगा। नहीं आया। एक मिनट, सुनो सुनो, एक आप मिनट भाई, समझ हमारी गया। बात सुन लीजिए यार। सुनो सुनो, नहीं हमारी नहीं, बात सुन आप लीजिए। आप जो गलत बयानी कर रहे हो, हम सुनो। गलत फहमी, हमारी बात पूरी होने देंगे तब तो समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है। जब चलिए साहबे बोलिए। कराम कुफ्र में थे, ईमान नहीं लाए थे, तब वो जलालत में थे या जलील थे या नहीं? और कुफ्र से उनको निकाल कर ईमान पर जब लाया गया तो उन्हें इज्जत मिली या नहीं मिली, आप हमको बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी देखो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं? सुनो सुनो, ये देखो तुम्हारे आलिम हैं, ये हम्म, बड़े आलिम है, ये हदायत बख्शिश की शरह किया उन्होंने, अल हकायक फिल हदायक अल मारूफ शरह हदायत बख्शिश। भाई ठीक है। एक मिनट, ये कह एक रहे मिनट भाई। हैं कि हेलो भाई, ये भाई खुद भाई, एक सुनो, मिनट एक मिनट, बात हमारी का हमारी बात सुनो, कलाम, हमारी बात सुनो। बात का कलाम भाई खुद जाते मुस्तफ़ा से मुताल्लिक है। ये खुद ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये शेर है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं, साहबा यानी सहाबा को आप जलील कहते हो, जलील मतलब थे। अल्लाह रब्बी बिल्कुल, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ जब क्या लिखा है। जलाल मतलब जलाल का मतलब जब कुफ्र में थे, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी अपने हबीब के जरिए, उन्हें इज्जत बख्शी, तो उस इज्जत पे लाखों सलाम।
इज्जत पे लाखों जिल्लत सलाम से उस पर। निकाला है। हाँ हाँ, हाँ, सुनो सुनो। जिल्लत से लेकिन अल्लाह ने निकाला, अल्लाह के रसूल ने हिदायत से निकाला, उन्हें हिदायत की और ईमान की रोशनी अता फरमाई, और तब हाँ, उन्हें अल्लाह ने इज्जत दी। उस चलो। बात का यहाँ जिक्र हो रहा है। हाँ, बात चलो आपकी है चलो, भाई, ठीक है। हमने इज्जत हमने बाद हाँ, जिल्लत। हम समझ रहे हैं। चलो, आपका कहना, अगर ये उस वक्त होता जब आपके आलिम खुद इसकी तस्रीह कर रहे हैं कि इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद है। दूसरा, जात मुराद आपके कैसे आला है? हजरत, देखो खामो, भाई, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए ना। आपके आला हजरत ने ऊपर लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शेर कही जा रही है। तो इसमें साहबा कराम का ताल्लुक नहीं है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने कहा है, लाखों सलाम लाखों सलाम। आप मुस्तफा हमको ये जाने बता रहमत पे, दीजिए। एक सुनो ना मेरे भाई, एक तो सुनो ना पहले, हाँ बोलो भाई। सबर तो करो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो वो किस पे सलाम पढ़ रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे कौन है मुस्तफा जाने? तो जब सीधी सी बात हो, जब नाम मुस्तफा का आ रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मुस्तफा, हाँ, तो जब नाम मुस्तफा आ रहा है तो जितने सलाम यहाँ पे है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और तुम्हारे आला हजरत ने वहां कहा भी है। ऐसा किसने तो कहा? ऐसा यहाँ भी इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, यानी जितने सलाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही जा रहे हैं। नहीं है। ठीक किसने आपसे कहा? है। किसने यार, कहा आपसे? तुम्हारे ये आला लिखा हजरत हुआ ने है खुद तो कहा, कब लिखा हुआ है? तुम्हार आपके आला हजरत ने खुद लिखा हुआ है इसके ताल्लुक एक से। मेरा ये सुनिए, एक सुनो मेरा सुनो, ये रहमत में दावा नहीं, साथ से सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो ये साथ की हाँ, उम्मत पर सलाम ऊपर से भेजा गया है उस या नबी पर भेजा शुरू, गया? आप हमको सुने बताइए। सुने ये ना, नबी शुरू की उन्होंने उम्मत पर, शुरुआत जो की है, ये किताब हाँ में तो अलग अलग उन्वान बना है कि यहाँ से क्या, किसके ऊपर सलाम है, यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के ऊपर है, यहाँ साहबा कराम के है, ये ऐसे ऐसे उन्वान बना है। उन्होंने उन्वान बनाया है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये उन्वान बना के फिर नीचे लिखा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बजमे हिदायत पे लाखों सलाम, महरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद। देखो दरूद किस पे पढ़ रहे हैं? महरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही सब मुझे सारी अल्लाह चीज पर आ सलाम रही है। है। आप बोलते हो कि साहब कराम। हाँ बिल्कुल, दूसरा आपके, नबी और के लिए है दूसरा वो तो हम आपके मानेंगे। आलिम ने खुद कहा है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद है। ठीक है। फिर आप जात मुराद कैसे है, कह ठीक है। सकते हो आप जलील का वो तो फिर आप जलील? सुनिए सुनिए सुनिए, किसी ने क्या कहा वो तो हमको पता नहीं है, बात हमारी सुनिए। किसी ने क्या कहा नहीं कहा वो हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, अक्सर और किल्लत ये नबी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पहले नबी किल्लत में थे, फिर बाद में ज्यादा हो गए, पहले कम थे फिर नबी ज्यादा हो गए, ये आप मुराद लेंगे? हाँ, पहले नहीं ये हमको उनके सवाल का जवाब दे हाँ, दीजिए, उसके बिल्कुल बाद हम बिल्कुल नबी पर बात बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल, नबी का मुराद नहीं है कसरत बाद किल्लत पे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम जो के साबित कर साथ, सकते हैं कि सुनो पहले पूरी नबी बात। किल्लत थे मतलब कम थे, उसके बाद ज्यादा हो गए, हाँ, तो आप हम फिर मान लेंगे कि हाँ ठीक हाँ है, हाँ हो हाँ, सकता है। फिर इज्जत, ये इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, तो वही कह रहे हैं, कसरत हाँ बाद में बाद हुई, किल्लत। किल्लत पहले अब हुई। ये जलील थे पहले, सुनो, इज्जत मिली, अच्छा उस पे हमको ये लाखों बताइए, सलाम, उस पे हाँ लाखों हमको ये सलाम। बताइए, ठीक है। जब सहाबे कराम, बात सुनिए हमारी, ईमान नहीं लाए थे, तब वो जिल्लत में थे या नहीं थे? वो इज्जत में थे या जिल्लत में थे जब ईमान नहीं लाए थे सहाबे कराम? तो और वो हमको जलील, आप वो जलील थे क्या? जलील थे? वो जिल्लत में थे या नहीं पहले नहीं, इज्जत में थे या पहले वो जिल्लत में थे? आप मैं कह रहा हूँ जलील थे क्या, ये बताइए। हमको ये सब नहीं, देखिए, हम जब नहीं, आपसे वही तो पूछ मैं रहे हैं, पूछ हमको रहा हूँ, बताइए। आपसे पूछ रहा हूँ क्या हम जलील थे? आपसे पूछ रहे हैं ना, आप जलील नहीं नहीं, हम आप आपसे बताओ पूछ ना, रहे हैं, हमसे सवाल क्यों पे पूछ जवाब रहे नहीं हैं? कर रहे हैं। ये शेर आपका है, आपके आलिम का है, तो जलील थे क्या, जब ये बताइए। अरे जब हम जलील थे? यार एक होटल में अभी काम ये करने वाला फत, इंसान, मामूली सा इंसान जिसे कोई अभी भी ये नहीं है, फत, वो इस सुने, शेर अब का मतलब जलील थे। समझ रहा है और ये पढ़ लिख करके फतावा रजविया में जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 111 में आपके ही अलजद लिखे हैं कि ठीक है भाई। जिम्मी हजरात को भाई तरक्की भाई भाई मिली भाई है कि खिलाफ शरा जलील की जिल्लत से निकलकर बड़ी इज्जत पा रहे हैं। फिर ठीक है, भाई किसके भाई, बारे में लिख रहे हैं? सुनो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे को इस लफ्ज भाई जलील भाई से सुनो, सुने, पूरी बात तो सुने ना मेरे भाई। नहीं अभी हमारे पास टाइम हुजूर, नहीं है, हमारा थोड़ा घर तक कॉल आ रहा है, उसके बाद अभी करना मैं है। आप उसी को कह रहा हूँ, कह रहे हैं अपने नफ्स को सजा व जिल्लत पर पेश किया, यह हुक्म हदीस हराम है। ठीक